Om Shri Sai Ram. Humble and most loving pranams at the divine lotus feet of our beloved Lord and Master, Bhagwan Shri Satya Sai Baba. We have been extremely fortunate in our lifetime to have been blessed with being connected to Swami in our lifetime and having been given the opportunity of spending some quality time with him, holding some quality conversations, and receiving some quality guidance from him. Today, when I look back, I'm not, though I'm very fond of reading, and initially I read a lot of Swami's literature, but I read them for uh, deriving bliss from the books. It never occurred to me to remember everything that I had read. I was reading for the moment, I was enjoying the moment, I was very happy and blissful at that moment. And later on, pieces and snippets from here and there would come in my mind as and when Swami felt it necessary. Otherwise, I'm the most illiterate in sign literature. As far as study circles and all are concerned, in the sense that for quotations and all these things, I'm afraid I'm very wanting, and I feel when I listen to such good speakers like Jayashri ji and many others who speak with such knowledge of everything, so I feel that I know almost nothing. When so, I will limit myself to what I remember vis-a-vis our direct one-to-one with Swami. I have talked earlier that Swami as omniscient, omnipotent, and uh, so and other things. But as I am given to understand, Swami's span on this amongst us has been very nicely divided as a miracle man, Harvard Muffet. That is how we all got attracted to Swami's fold by reading Man of Miracles. And it was an eye opener. And later on, when we experienced everything personally, so even that went into the background. Today, if you ask me what was there in Miracle Man, I probably would not be able to tell you anything. But at that time, we were so taken up by it and Swami's miracles and all that. But today, I feel that Leela Purushan, Leela is his swabhav. Wherever he is, wherever he wants to, Leelas keep happening. There are no hard and fast dividing lines. No, this is the period when he was the Leela Purush, this was the period when he was the Guru, this is the period when he was the healer. No, he chooses his own time as and when what he wants to do what. And Leelas are happening all over the world. Even today, people are experiencing his presence more today than probably what they used to do earlier, because I think they have become more aware and more connected by heart and mind. Because now that the physical form is not in front of us, we have to focus on our awareness of contact with Him. That's what we keep doing all the time. That is what we keep struggling with. How to remain connected. How to remain connected. In this
have a very interesting experience to narrate. When we were in Puttaparthi early days, there was a lot of curiosity amongst us to know everything. There was a tall Panditji who used to perform the puja inside the Prashanti Mandir and do Swami's Aarti morning and evening. So, one of my sisters, Dr. Sushma Mehrotra, Dr. Sushma was very childlike, very pure hearted and sweet natured, loving soul. And but she was all the time saying, this Panditji must have had done amazing karmas in his past life so that he's being given the opportunity of doing a Swami's Aarti morning and evening daily, 24 into 7. So we must find out how does he manage to do it? What is he doing now? So uh, thing is that one day we followed him after the bhajan was over. Panditji used to go to the Ganesh Mandir, and from Ganesh Mandir he would go to his little room where he used to stay with his wife and daughters. Where the new guest houses, where the presidents and all go and stay, not Shanti Bhavan, but up the hill, closer to the primary school site. And at that time, there was no such thing. There were a few barracks where people like Rani Balbir ji used to stay, and some other senior devotees were staying there. And we followed him up the hill, up the hill. And the poor man was quite worried. Why are these poor ladies following me? And he would stop and we would stop. Then he would move and we would move with him. So he was very worried. And we were wanting to know, yet we were also scared that he will stop us. Anyway, he reached the track, the steps which took him down the hill to where his little hut was. And in front of his hut, there was a tulsi in that water container, and he was carrying water from the mandir from him, which he offered to the tulsi, and lit the lamp there. And we did not have the nerve to go down the steps. We went down a few steps and then sat on the steps only, waiting for his little puja to finish of the tulsi, trying to find out in our own minds how to talk to him. And we didn't even know whether he would understand us in English or in Hindi, and we didn't know Telugu at all. So, but Panditji turned round after he finished his puja. He came to the steps, looked up, and asked us, "Yes, what do you want?" in English. And that, put new heart in us. And we scrambled down the steps into a more accessible distance from him. And then we said, Panditji, we are very keen to find out what sadhana you do, which is enabling you to do this morning and evening aarti of Swami in person, and given the duty of doing puja in the Prashanti Mandir. So then he sat down and he said, no sadhana. The only sadhana is to have absolute faith and trust in Swami and have absolute faith in whatever he says. And
do constant Nam Smaran. So I said, what is Nam Smaran? We all had malas and we used to do our malas. He said, no, malas, so you count one mala, two mala, three mala. That is not Nam Smaran. That is also Nam Smaran, but that is not what I'm intending to tell you. Nam Smaran is this is only practicing. And after practice, you, with every incoming breath, you say Sai, and with every outgoing breath, you say Sai, to the point when you lose awareness of the fact, but every incoming breath is automatically saying Sai, and receding breath saying Sai. So it is constant, even while you are asleep, your breath is doing Nam Smaran all the time. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. Constant incoming sign, outgoing sign. And that is how he demonstrated. He said it was not easy before, but over the years, it has happened like this that so it is he, he said, now we started thinking to ourselves, is it possible to do this when you're not even, I mean, if you are conscious of the fact, then of course with every incoming back, you remember to say Sai Ram, and with every outgoing breath, you say Sai Ram. But is it possible that even without your knowing, your incoming and outgoing breath is constantly repeating Sai Ram? And, one day Swami, so this is what he said at that time. Regarding this, I will narrate another thing after a little while, but after I finish with Panditji. Panditji had three daughters. He told us his story, how he reached Puttaparthi when he was 21-year old. And while sitting on the banks of Chitravati, Swami came up to him along with some other students and devotees, and he said, "Hey Pandit, तुम कल से मेरा संस्कृत पाठशाला में संस्कृत पढ़ाएगा." Now Pandit ji said, कि स्वामी मुझको तो संस्कृत आती नहीं है. साई ने कहा ना तुम संस्कृत पाठशाला में अध्यापक का काम करेगा, तुम वहां जाओ. उस वक्त there used to be a Sanskrit पाठशाला in Puttaparthi. Swami had established one. It's no longer there, it's wound up. Anyway, Panditji went there and to his amazement found that for a few years he was teaching Sanskrit in Sanskrit Pathshala. And then one day Swami came to visit and he said, "Hey Pandit, तुम कल से मंदिर में आकर पूजा और आरती करेगा." अब he said कि मुझे तो आती नहीं, सब आ जाएगा, तुम कल से करेगा. Said I reached there. अब जब मैं आरती करूं तो घंटी ना बजे, दूसरा हाथ ना चले, घंटी बजाऊं तो आरती ना चले. एंड बाबा यूज्ड टू लाफ एंड टेल हिज स्टूडेंट, देखो कैसा पंडित है, इसको आरती भी ठीक से करना नहीं आता. Yet he would make me do. And sure enough, in due course of time, the movement became habitual and the aarti and the bell moved fluently. But he said कि time passed and my elder daughter from Ishwaramba school, she finished her high school. And then Swami said कि Pandit, daughter का marriage नहीं करता. So he said कि Swami करेगा. Boy देखा है? हाँ स्वामी देखा है, मेरे सिस्टर का सन है और हम लोगों के यहाँ कस्टम है कि that they will get married. हाँ सिस्टर को जाके पूछो और जल्दी मैरिज करो. वह पंडित जी, he went to his sister. Now the sister looked at him and he said, उधर
साउथ में सॉवरेन्स होते हैं कि आपने कितने सॉवरेन्स की शादी करी, हाउ मेनी गोल्ड सॉवरेन्स आर यू गिविंग योर चाइल्ड इन मैरिज. So the standard of marriage is judged by how many sovereigns you are giving. So sister asked him कि बेटी की शादी में देने के लिए तुम्हारे पास कितना सॉवरेन है. उसने कहा मेरे पास तो एक भी सॉवरेन नहीं है, एक भी सॉवरेन नहीं है और तुम बेटी का प्रपोजल लेकर आ गया. मेरे को बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं, मेरे मैं नहीं शादी करेगा तुम्हारी अपने बेटे की तुम्हारी बेटी से. Now Panditji was very upset. He was taking it for granted कि बहन की बेटे से मेरी बेटी की शादी तो तय है. Anyway, he came back and now he went to his brother who was in Bangalore or somewhere in Karnataka. So he told his brother कि भाई मेरे बेटी की शादी स्वामी ने कहा है जल्दी करो, तो बेटी की शादी करनी है, उसके लिए लड़का बताओ. So भाई also asked him the same question कि तुम तो प्रशांति मंदिर में पुजारी का काम करता है, तुमको कितना पैसा कितना तनख्वाह मिलता है, कितना सॉवरेन का मैरिज करेगा. तो उसने कहा सॉवरेन तो मेरे पास है नहीं, सॉवरेन है नहीं, पैसा है नहीं, बेटी का मैरिज के लिए गुड बॉय ढूंढता, मैं कहाँ से गुड बॉय ढूंढ के लाएगा. वहां से भी बेचारे यही सुन करके आ गए कि नहीं हो सकती शादी. फाइनली ही हैड अ friend, a school friend, college friend, who was a sahukar, and he went to him. उनका बेटा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि यू नो मी वेरी वेल और हम दोनों दोस्त हैं और हमेशा है कि आई ब्रॉट माय प्रपोजल ऑफ माय डॉटर फॉर योर सन. तो ही ऑल्सो सेड कि भाई दोस्ती अपनी जगह है और ये शादी ब्याह की रिश्तेदारी अपनी जगह है और यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड टू फॉर दिस मैच विथ माय सन, तो इस बात को आगे मत बढ़ाओ. अब तो ये बड़े दुखी हुए and he came back very frustrated and all that, and so Swami asked him कि क्या हुआ, बॉय देखा बेटी के लिए, सिस्टर ने क्या कहा. ही सेड अब मैं कुछ नहीं जानता, आपकी बेटी है, आप जानो उसकी किससे शादी करना है, बेगर हो, रिच हो, इनकैपेसिटेड हो, हैंडसम हो, अगली हो, जैसा भी हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी बेटी है, जहां तुम्हारी मर्जी आए वहां शादी कर दो, मैं नहीं कर सकता. अच्छा, स्वामी heard him out and he was very upset. अपने उन्होंने रेगुलर अपनी पूजा वूजा फिर शुरू कर दी. One day that lady, that sahukar's wife and the son, they arrived in Puttaparthi. And they arrived in Puttaparthi और वो इनसे बोली कि भाई मेरे हस्बैंड ने तुमको ठीक जवाब नहीं दिया और आई विल बी वेरी लकी if your daughter becomes my daughter-in-law, and I have come with a proposal of marriage with your daughter and my son. अब इनको लगा कि भाई मेरा तो अब कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैंने तो लड़की स्वामी को, स्वामी की बेटी है, तो अब तो जो करना है स्वामी करेंगे. सो ही सेड कि ऐसा है कि आप स्वामी की परमिशन ले लीजिए, स्वामी कहेंगे तो लड़की आपकी है. तो एनीवे मॉर्निंग इवनिंग दर्शन लाइन में वो बैठती थी और स्वामी उधर उनके पास जाते नहीं थे, बोलते ही नहीं थे, कुछ नहीं बोल. और वो बार बार इनसे कहें कि भाई क्या जवाब है आपका, क्या जवाब है आपका. ही स्टार्टेड अवॉइडिंग हर कि भैया मैं क्या जवाब दूं, ये तो जवाब स्वामी को देना है, बेटी उनकी है. आफ्टर 1 month had passed, Swami told him inside the mandir, ए पंडित, डॉटर का मैरिज करना है कि नहीं. By the time Panditji was quite fed up with his daughter's marriage, and he said, Swami, she's your daughter, you decide whatever has to be done, or
मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे। अगेन ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स कैसा पंडित है। सर, बॉय का मदर और बॉय आकर 1 महीने से पुटपर्ती में है, ये उनको जवाब नहीं देता है, आंसर नहीं दे रहा है। पंडित, उसको बुलाओ और उसको बोलो तुम डॉटर का मैरिज करेगा। अब ये बेचारे उनके पास पहुंचे और कहा कि स्वामी ने परमिशन दी है, प्लीज कम टू माय स्मॉल लिटिल हट and whatever hospitality we can offer, we'll offer. And but that Sahukar's wife was so happy and relieved कि भाई स्वामी ने अप्रूवल दे दी है, सब वो शादी तय हो गई। अब इनके यहाँ ये कस्टम था कि बारात आएगी तो अपने खर्चे से, मगर विदा लड़की वाले करेंगे, वो खर्चा देंगे बारात को वापस भेजने का सारे। और so Swami performed the wedding of that girl. दोनों तरफ का आने जाने, दोनों तरफ का खर्चा स्वामी ने बेयर किया। सारा लड़की को कपड़ा जेवर जो कुछ भी देना था सब स्वामी ने दिया। अब इनकी वाइफ ने ये सोचा कि स्वामी ने तो बड़ी डॉटर का ज्वेलरी बना दी है, अब मेरे पास तो 2 बेटियां और हैं, तो जो थोड़ा बहुत उनके पास था वो उन्होंने एक कपड़े में बांध करके और जैसे छत की बल्ली में उसको छिपा दिया था। जब लड़की की विदा होने लगी तो स्वामी ने इनकी वाइफ को बुलाया और कहा, ए, तुम अपने डॉटर को तुमने क्या दिया? कहा, स्वामी आपकी डॉटर थी, जो कुछ देना आपने दिया, मैं क्या देगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। स्वामी कहते, और वो जो रूप में तुम छुपा के रखा है गोल्ड, उसको लेकर के आओ और दो इसको। अब वो लेकर के, कहने मेरी वाइफ को लेकर के और जा करके उन्होंने स्वामी को कहा, स्वामी ये है। हाँ हाँ, डॉटर को दो, तो दे दिया। अब उसके बाद बाकी 2 लड़कियां तो पढ़ रही थी, उनका क्या हुआ है? तो कहने कि भाई वंस यू मेक अ कमिटमेंट टू स्वामी, even if you say it, if you utter the word, I have given to you, it means it is done. Swami has accepted. Then you have to have full faith in that, और blind faith इस चीज पर होना चाहिए। मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं पहली बार स्वामी को मिली तो मैंने चिट्ठी लिखी थी स्वामी को। तो ये लिखा था कि स्वामी, सब लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, लेकिन भगवान के पास जाएं तो हम दुनिया का मांगने क्यों जाएं, हम जाएं तो फिर आपसे आपको ही मांगने आएंगे। और यहाँ आके ये समझ में आया कि ये तो हम तो सिर्फ केयर टेकर हैं, हमारे तो ये तो बच्चे आपके हैं, हमारे तो बच्चे हैं नहीं, ये तो आपके बच्चे हैं। तो हम आपको आपकी अमानत आपको सौंप रहे हैं, एंड फॉर बेटर और वर्स जैसी भी मैं देखभाल कर सकती थी मैंने करी, और मगर नाउ दे आर योर्स एंड यू एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चिट्ठी तो हम स्वामी को नहीं दे पाए, इट वॉज रिमेन्ड इन माई बैग, एंड year later, traveling in a train, I found that letter folded in my bag, and it was full of vibhuti, full of vibhuti. Meanwhile, भगवान ने हमसे पूछना शुरू किया कि सन कैसा होता, डॉटर कैसा होता, तुम्हारा सन कैसा, तुम्हारा डॉटर कैसा। और मेरे मुंह से यही निकलवाते थे कि स्वामी मेरा तो कोई सन डॉटर नहीं है, आपके पास है, मेरे आई हैव नो चिल्ड्रन, आई एम ओनली अ केयर टेकर, आई डोंट हैव चिल्ड्रन। और वो pointedly he would look at my husband because my husband would ask कि मेरे बेटे का ये, मेरी बेटी का ये, तो बट he would say कि देखो तुम्हारा वाइफ क्या बोलता है, तुम्हारा वाइफ क्या बोलता है। माय हस्बैंड वुड फील वेरी अपसेट कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द चिल्ड्रन, मैं कह रही मेरे तो बच्चे ही नहीं है।
तो एनीवे तो वो हमें आपस में भी ये कराते थे कि भाई सोच लो तुमने क्या कहा है, क्या कर रहे। केप्ट ऑन, बट आई केप्ट ऑन सेइंग कि स्वामी मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, बच्चे आपके हैं और आप जाने, यू आई हैव हैंडेड देम ओवर टू यू एंड नाउ इट्स अप टू यू। फिर इसी तरीके से 2-3 साल निकल गए। Every time, every meeting with Swami, he would ask, how are the children? How is your son? How's your daughter? And he would hear the same reply from me. फिर उसके बाद एकदम बोले, मैं तुमको मैं तुमको चिल्ड्रन देता हूँ। मैंने कहा स्वामी आप इस एज में चिल्ड्रन क्या करे। तो क्या नहीं, पागल, भक्ति तुम्हारा सन होता, शांति तुम्हारा डॉटर। साई ने दिया तुम। सो और वहीं स्वामी ने छोड़ा नहीं मामला। ही कंटिन्यूड आस्किंग कि सन कैसा है, डॉटर कैसा है। एंड आई वुड से स्वामी मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब ये बड़े होंगे, लेकिन ये बड़े ही नहीं होते, ये तो छोटे ही बने हुए हैं, बड़े कब होंगे ये। हो जाएगा माँ। एंड देन आई थिंक दिस कंटिन्यूड फॉर 5 years and then it stopped. He finally accepted the fact. He, I mean, I was sincere in what I was saying. Then ये तो बात हुई कि जो एक बार स्वामी को कमिटमेंट कर दिया, वो इट one should stick to that commitment. It should not be just so many words spoken casually and not meant from the heart. तो हम लोग कहते हैं ना कि भगवान हम आपके हैं, भगवान हम आपके हैं। हमने अपने को सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी हम अपने कर्म की, अपने थॉट वर्ड और डीड की ओनरशिप कहते हैं। मेरी थिंकिंग, मेरे वर्ड्स, मेरे डीड्स, मेरे ये कर्म, मेरे वो कर्म। Why do we do that? Why do we take the ownership on ourselves of the thing? अपने ऊपर क्यों लेते हैं? एक बार हमने जब उनको हैंड ओवर कर दिया तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। तो एक बार उन्होंने कहा पुरुषार्थ तो करना चाहिए माँ। थाली परस करके तुम्हारे सामने खाना रख सकते हैं, लेकिन खाना तो तुम्हें अपने आप पड़ेगा। So then he said, हनुमान जी, राम राम जी की कार का टायर पंक्चर हो गया। तो अब पंक्चर हो गया तो गाड़ी कैसे चले। तो हनुमान जी आए। तो हनुमान जी से उन्होंने कहा, हनुमान गाड़ी का टायर ठीक करो, पंक्चर हो गया है, इसको तुम ठीक करो तो हम आगे जाएं। हनुमान जी ने फोल्ड करके उनसे कहा, स्वामी आई एम हियर, अब आपको जैसे करवाना हो ठीक, मुझे मुझसे करवाते जाइए, हो जाएगा, करना तो आपको ही है। सो बट पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। हनुमान तो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कैसे होगा। सो अगेन आई वुड से कि स्वामी का जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, he already knows कि इसका आंसर क्या आने वाला है, because he's put the answer in your mind, put the words on your tongue, because that question and answer is not meant for yourself alone. जब भी आप बाहर जाकर के उसको बताओगे, it will reach out to many and carry the message behind it कि स्वामी ही हमारी थॉट, वर्ड और डीड को गवर्न करते हैं। When you say you belong to Swami, you are one with Swami, then you become that. Swami accepts you. And once उन्होंने कहा ना, एक बार मैं हाथ पकड़ता हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ते हो, तुम छोड़ सकते हो, लेकिन जब मैं हाथ पकड़ता हूँ तो मैं छोड़ता नहीं, मैं छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता। तुम मेरे हाथ में गोल्ड का ब्रिक रख देता है। दिस इज अगेन व्हाट ही सेड टू अस।
तो मेरे हाथ में सोने का ब्रिक रख देता है, गोल्ड का ब्रिक रख देता है, और मुझको कमीशन करता है कि ऐसा ऑर्नामेंट नेकलेस बनाओ कि इसके जैसा दूसरा हो ही ना। एंड आई एक्सेप्ट दैट कमीशन। और उसके साथ मैं क्या करता हूँ फिर, मैं उसको मेटल को फायर पे, फ्लेम पे रखता हूँ उसको सॉफ्टन करने के लिए। लेकिन तुमको जैसे हीट लगती है वो चिल्लाने लगता है, हाय हाय गरम। बट डू आई लिसन? नो। आई हैव टेकन a commitment. I made a commitment to prepare that necklace. तो मैं उसको सॉफ्टन करता हूँ, फिर उसको मैं मैलेट से उसको पीटता हूँ, मैं उसको ठोकता हूँ, पीटता हूँ। तुम स्क्रीम करो, तुम रो, बट आई डोंट लिसन। उसको करता हूँ, उसको शेप देता हूँ, फिर मैं चिजल से उसमें कार्विंग करता हूँ, उसकी छीलता हूँ, उसको कार्विंग करता हूँ उसमें। अगेन यू क्राई, लेकिन मैं रुकता नहीं। I have made a commitment to you. I have accepted a commission and I fulfill that commission. मैं रुकता नहीं। लेकिन हाँ, मैं मेटल को बीच बीच में संतोषम संतोषम कह करके थोड़ा थोड़ा वाटर का कूल इफेक्ट देता कि ये टूट ना जाए, ब्रेक ना कर जाए। उस पॉइंट पे लाओ कि उसको शेप कर सको, मगर ब्रेक करने का इंटेंशन साई का नहीं होता है। तो वो बोलते हैं संतोषम। जब साईं कहता है संतोषम, तुम सोचता है कि योर साधना इज कंप्लीट, योर वर्क इज ओवर एंड नाउ स्वामी इज संतुष्ट, ही हैज सेड संतोषम। नो 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 नो, संतोषम इज द रेस्टिंग पॉइंट बिटवीन टू पेन्स। तो रेस्टिंग पॉइंट जो है उसको स्वामी संतोषम कहते हैं। और जब वो ऑर्नामेंट बन के तैयार हो जाता है, वो इतना इनकम्पेरेबली खूबसूरत होता है कि जब तुम उसको देखते हो तो तुम कहते हो कि स्वामी, ये तो सिर्फ आप ही पहन सकते हैं, और ये कोई इसके लायक ही नहीं है पहनने के, और तुम उसको नेकलेस को मुझे ऑफर कर दीजिए। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। तो ये स्वामी का कमिटमेंट हमारे साथ है। तो जब वो पुरुषार्थ की बात कर रहे थे तो हमने उनसे कहा, स्वामी, आई नीड सम डाउट क्लियर्ड इन माय माइंड। तो कहने, क्या है, क्या डाउट है? मैंने कहा, स्वामी मुझे ये बताइए, पुरुषार्थ किसका होता है? शरीर का पुरुषार्थ होता है या पुरुष का पुरुषार्थ होता है? तो पुरुष कौन है और उसका शरीर से क्या संबंध? क्योंकि जब शरीर में पुरुष का प्रवेश होता है तभी पौरुष आता है। I mean, mind starts thinking, eyes start seeing, ears start hearing, all the indriyas become active, your body becomes active. तो एक्शन कौन करता है? जो बॉडी में एंटर करता है या बॉडी करती है? अगर बॉडी करती है तो जब वो चला जाता है तो बॉडी इनर्ट क्यों पड़ी रह जाती है? Why is it then called dead and unable to act? तो पुरुषार्थ किसका हुआ? And Swami looked seriously at me and he said, माँ, हमेशा ऐसा ही भाव रखो कि करने वाला, कर्ता पुरुष, जो हमारे सुखमनी में कर्ता पुरुष कौन है? तो जब कर्ता पुरुष सब कर रहा है तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बाय टेकिंग ओनरशिप। हमारी जो ईगो है, जो चाहे वो नेगेटिव ईगो हो या पॉजिटिव ईगो हो, हम अपने थॉट, वर्ड और डीड्स की ओनरशिप क्लेम करते हैं। एंड दैट इज द रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम बॉन्डेज में फंसते। बॉन्डेज में हम अपने आप को बांधते हैं, भगवान हमको किसी बॉन्डेज में नहीं बांधते।
तो और उन्होंने गीता में अर्जुन को बराबर समझाया, सब कुछ समझने के बाद, हर सारी चीज समझने के बाद, अल्टीमेटली ही केम आउट इन द ओपन एंड सेड सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब ये नहीं है कि तुम अकर्मण्य हो जाओ, बिकॉज यू आर मेंट टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस तो तुम्हारी बॉडी करती रहेगी जब तक इसके अंदर रहने वाला है, वो इसको यूज करता रहेगा, तब तक ये परफॉर्म करती रहेगी। बट गिव मी द ओनरशिप of your thought, word, and surrender those to me and relieve yourself of your bondage. I will relieve you of your bondages. I will liberate you from your bondages. You just surrender the ownership of your thought, word, and deed. That is what he meant. तो स्वामी भी यही कहते हैं कि अब हम तो यही कहते हैं, एक जब हम पहली बार हमने प्रशांति मंदिर में स्वामी का को गाते हुए सुना, पहले स्वामी अपने हर भजन में एक भजन स्वामी जरूर गाते थे, और उस वक्त उन्होंने वही गाया, लव इज माय फॉर्म, ट्रूथ इज माय ब्रेथ, ब्लिस इज माय फूड। अब अपने को उन्होंने बिल्कुल ओपन कर दिया, एक्सपेंशन इज माय लाइफ, लव इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज माय लाइफ। हमसे उन्होंने कहा व्हाट इज लव? लव इज लाइक अ बलून। बलून में तुम इतना लव भरो, इतनी लव इन द फॉर्म ऑफ एयर, इतना भरो कि वो फूलते फूलते इतना फूल जाए कि जब बर्स्ट करे तो जो अंदर है और बाहर है वो एक हो जाए। तो एक्सपैंड एक्सपैंड एक्सपैंड, लव इज एक्सपेंशन। सेल्फिश होके यू कॉन्ट्रैक्ट योरसेल्फ, यू लिमिट योरसेल्फ। लव जो है, लव इज सेल्फलेस, एंड लव leads to expansion of your heart, expansion of your conscience, of your conscious. So your consciousness is expanded. It becomes all enveloping. भगवान पहले कहते थे my life is my message, expansion of my life is my message. अब वो बाबा ने कहना शुरू किया your life is my message. Why? उन्होंने हमको जितना सिखाना था, जितना बताना था, वो हमको तरह तरीके से बता चुके अपने लाइफ के थ्रू। अब हमें अपनी लाइफ ऐसे लीड करनी है कि दूसरे क्वेश्चन करें कि ये आपने अपने को किसके किसके ऊपर पैटर्न किया है। वी प्रोजेक्ट स्वामी बाय आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। दैट इज व्हाई स्वामी सेज योर लाइफ इज माय मैसेज। अब जो लाइक आप लोग अब ये कह रहे हैं लाइफ विद स्वामी जो है, व्हाट इज दिस? रीचिंग आउट टू स्वामी, एंड व्हाट आर यू expecting from us? To share with you what Swami has taught us. But if we had not, if we had not to a large extent or to some extent incorporated what we were taught in our lives, what we are saying to you in words will just remain words and will not touch your heart in any way. Hearts can only be touched if your thought, word, and deed are connected with, and उसकी ही थॉट्स को तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसी की वॉइस को तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसी की डीड्स तुम्हारे हाथ परफॉर्म कर। Make him the owner of your thought, word, and deeds, and do your job as an instrument. ये स्वामी ने कहा। स्वामी ने बहुत बड़े बड़े तरीके से, आई एम नाउ सेइंग कि स्वामी ने हमें सिखाया क्या। हम स्वामी को अपना गुरु कहते हैं, वी
थिंक ऑफ हिम एज व्हेनेवर वो कहते हैं अपने गुरु का ध्यान करिए, तो किसका ध्यान आता है? स्वामी का ध्यान आता है। वो कहते हैं आप अपने भगवान का ध्यान करिए। हमने तो भगवान का कोई रूप जाना नहीं है, हमने तो सिर्फ स्वामी को जाना है। वही हमारे लिए राम, कृष्ण, शिव, माँ, सब रूप में वही है। जीसस कह लो, अल्लाह कह लो, बुद्ध कह लो, गुरु नानक, जो भी है। अगर हम जिसको, जो हमारे इष्ट है, अगर हम उसके फेस को विजुअलाइज करते हैं, तो हमारे सामने फेस, जो नोन फेस है, जो हम जानते हैं, जिससे हम फेमिलियर हैं, जिससे उसने हमें फेमिलियराइज कराया है, हम उसी को जानते हैं। और हम उसको छोड़ करके, उसको तो तस्वीर बना करके लगा दें, और हम इस रूप में जाएं, उस रूप में जाएं, उस रूप में जाएं, जो कि they are mere imaginations of the person who has made the picture. It is not even a photograph. That is why every Krishna by every artist looks different. सब चीजें, लेकिन ये है कि हम तो एक ही रूप को जानते हैं। हम उसी रूप को पकड़ के क्यों ना बैठे? वही हमको पीस देता है, वही हमको एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है, वही हमको मोटिवेट करता है, वही हमारे थ्रू एक्ट करता है। तो इफ वी अलाउ ourselves to become projections of Swami, then what will we do? Help ever, hurt never. We will forgive and forget. We will always serve with love, because छोटे छोटे टेनेट्स है स्वामी के। स्वामी ने कहा हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है? What is the so special about Bharat Bhumi? Because this is the only country which has projected in thoughts, words, and deeds through the saints and sages who have born, who have taken birth here. भारत इस तपोभूमि, यहाँ पे इंसान तपता है। जब तक सोना तपेगा नहीं, तब तक वो 24 कैरेट प्योरिटी ऑब्टेन नहीं कर सकता। तपोभूमि है, कर्म भूमि है, त्याग भूमि है। विदाउट सैक्रिफाइस नथिंग इज पॉसिबल। त्याग क्या करना है? अपनी सेल्फिशनेस को त्यागना है, अपनी मैं को त्यागना है, अपनी ईगो को त्यागना है, अपने जो डिविजन है मेरे तेरे का, पोलराइजेशन को। भगवान वांट्स यूनिटी। यूनिटी को उन्होंने डिफाइन किया। हिंदू क्या है? ह्यूमैनिटी, इंडिविजुअलिटी, nationality, divinity, unity. This is what combined makes the word Hindu. तो यूनिटी हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। भगवान ने हमेशा कहा है कि यूनिटी जितनी, यहाँ भी जब भगवान आए थे, जब साइंस सेंटर बना था और उसका इनॉग्रेशन करने स्वामी आए थे, तभी उन्होंने कहा कि ये बात कही गई, जो जिन्होंने स्वामी को उस स्टेज पे लाए, तो उन्होंने कहा कि नाउ दैट वी हैव Swami's own residence here, Swami's own Swami has come to Delhi after 14 years. राम का वनवास 14 साल का हुआ था, स्वामी भी दिल्ली 14 साल बाद आए हैं। And now we hope and pray that Swami will come every year to Delhi. And, और स्वामी ने क्या कहा? स्वामी ने कहा, yes, yes, now that Sai has a residence here, Sai will come every year, provided, he immediately said, provided there is unity in your organization. Organization में भी unity होती है। तो बेसिक चीज ये है कि स्वामी के वर्ड्स, he means every word that he says. बहुत छोटे छोटे बात करो कि हाँ शांति,
और प्रेम और अहिंसा और सत्य और धर्म, ये सब वर्ड्स हैं। सुनने कौन इसके ऊपर एक्ट करता है? बीके करंजिया ऑफ ब्लिट्स ने स्वामी से कहा कि स्वामी आपने you expect us to become like this and like this, like, but Swami, the world outside is not like this. We have to deal with the world outside, and the outside world is not like this. तो स्वामी ने बड़ी सीरियसली उनसे ये कहा कि you take care of yourself, sir, leave the world to its creator. जिसने वर्ल्ड क्रिएट किया है वो वर्ल्ड को देखेगा, तुम सिर्फ अपने को देखो. So why दिस इज द नॉर्मल, जो हम लोगों की टेंडेंसी है कहने की, मगर वो तो ऐसे करता है, वो तो ऐसे करता है. हमें किसी को नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये शरीर से क्या हो रहा है, इन मुख से क्या शब्द निकल रहे हैं, ये आंखें क्या देख रही हैं, ये कान क्या सुन रहे हैं, ये हाथ क्या कर रहे हैं, ये पैर किस तरफ जा रहे हैं, स्वामी कहाँ ले जा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. All the time you are listening, you are doing, obeying Swami. In whatever action you are performing, you are only performing the way he's making you perform. You are only thinking the way he wants you to think. You are only speaking the words which he wants you to speak. लेकिन ओनरशिप जब हम अपने आप लेते हैं तो स्वामी बिकम्स अ विटनेस. स्वामी ने एक बार कहा था कि तुम कहते हो that you love Swami. Yes, yes. Sai also loves you very much. But still, you are bound and Sai is free. Kyunki you have taken upon yourself the ownership of the thought, word, and deed. So I am a witness, and you become the doer, and I am the witness. So you are bound, I am free. You say कि you have, along with your love, you have full faith in me. I say, very good. I I also love you very much and I appreciate your faith. मैं तुम्हारी जो ओनरशिप का जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको थोड़ा लाइट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम बाउंड हो और मैं विटनेस हूँ. But when you give love, you give faith, and you surrender ownership of thought, word, and deed to me, then you become liberated. You become the witness. I am bound. जो कि उन्होंने गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः. If you have that intense faith in me, if you are thinking of me all the time, if you are dependent on me for everything, then I take care of everything. I give you everything that is due to you. I also give you that which is over and above what is due to you. And I will see to it that you don't lose out on anything. That is my responsibility. I have taken on upon myself the responsibility of you. ये भगवान ने गीता में कहा. Swami also says the same thing. Swami also says the same. तो हम ये है कि स्वामी इज द अल्टीमेट टीचर, कि वो कोई चीज बहुत ऐसे फैला फैला के नहीं कहते. कि हमने तो कई बार देखा कि स्वामी जब डिस्कोर्स देते थे तो डिस्कोर्स में हम, क्योंकि हमें तेलुगु लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, और जो कई कई बार जब उसका इंटरप्रिटेशन साइड बाय साइड होता था तो उसमें एको होती थी माइक में या कुछ होता था या हमें ठीक से सुनाई नहीं देता था, तो हम
सो जाती थी. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी गिल्टी. कह रहे हम सो गए, लोग क्या कहेंगे. बट आई फाउंड दैट इट वाज हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. ये सो जाते. लेकिन उस पूरे जो उनका वो होता था, डिस्कोर्स होता था, एक चीज ऐसी रेलेवेंट होती थी, छोटी सी, कि उस वक्त आंख खुल जाती. स्वामी ने ये कहा, वो चीज चिपक जाती थी दिमाग में, और ये लगता था कि हाँ ये. If you analyze yourself all the time and you see where you have come from, where, कहाँ से तुमने जर्नी स्टार्ट करी और कहाँ तक तुम पहुंच गए हो, तुम्हारे अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है. ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला कोई नहीं है, कोई और नहीं है. ये ट्रांसफॉर्मेशन स्वामी लाए. Why? Because you are the chosen one. He has chosen out of billions of population. He has chosen those souls whom he has brought on this earth to work alongside as his instruments to fulfill his mission on earth. I have come to establish Sanatan Dharma. I have come to bring in the golden age. Kalyug is going, Kalyug is on its last legs. Golden age, Swami ne kaha, I never fail in my mission. Whatever I come to do, I do it. So, if we do not believe, अगर हम अपने मुंह से कहते हैं घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, हमारी आंखें नहीं देख रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में जो स्वामी लाए हैं, तो हम गोल्डन एज को बाहर क्या देखेंगे. पहले अपने को तो देखो कि तुम 1 घंटा यहाँ सारे दिन भर काम करते हो, 1 घंटा यहाँ बैठ करके तुम स्वामी की बात सुनते हो. Why? Because it reassures you, it brings you joy, it brings you happiness, it gives you strength, it motivates you to move in a certain direction. Your way to life, कैसे तुम्हें आगे काम करना है, कैसे तुम्हारा शरीर आगे करेगा, कैसे तुम अपने को सरेंडर करो. जितना जितना तुम अपने को सरेंडर करते जाओगे, उतना ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट तुम बनते चले जाओगे. बिकॉज आफ्टर ऑल, एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जब तक शार्पन नहीं होगा, तब तक तो स्वामी के मतलब का तो, सर्जन के मतलब का तो नहीं है ना. All instruments have to be kept clean, sharp, uh, uh, hygienized, bilkul clean, pure, for him to use. Offer him everything that is pure. And purity of thought is, I belong to you, I belong to you, I belong to you, Swami. Whatever you have planned for me, you know why you have planned in such a way. Why should I see it as good or bad or ugly or beautiful? It is all your planning. And never forget, whatever happens because of his will, and his will is always for our good. And never forget. तो बेसिक चीज ये है कि स्वामी की को व्हेन यू एक्सेप्ट एज अ गुरु, तो जो इनके छोटे छोटे चीजें हैं, इनको बहुत ध्यान से सोचो और फिर अपने को एनालाइज करो कि तुम्हारे अंदर ये कितना इम्बाइब हुआ है, तुम्हारे अंदर ये चेंजेस आए हैं. लुक एट विथ यू एंड लुक एट योर सेल्फ विथ सरप्राइज, विथ एंटिसिपेशन, कि अब स्वामी ने मेरे अंदर और क्या चेंज लाया है, अब स्वामी ने इसके अंदर और क्या चेंज लाया है, स्वामी ने अब इस माइंड में और क्या डाला है. तो स्वामी ने की वोकैबुलरी इन वर्ड्स के थ्रू क्या हो रही है, कैसी है. एनालाइज कि एनालाइज योरसेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट.
कि how is Swami using you? How is he making you useful to him? And don't question him कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये गलत है. कुछ गलत नहीं. स्वामी के वोकैबुलरी में गलत तो कुछ है ही नहीं. There is nothing. It's all part of his game. It is all part of how he wants to run his creation. He's the creator. जब तक तुम ओनर हो तब तक तुम अपने घर को ये नहीं देखते हो कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हर चीज क्लॉक वर्क की तरह रन करने चाहिए. द स्टाफ शुड बी डिसिप्लिन. ये भी सफाई ठीक से नहीं हुई, ये इसकी खूबसूरती, फ्लावर्स नहीं लगे. ऑल द थिंग यू आर, बिकॉज यू थिंक ऑफ इट इज योर्स. तुम किसी दूसरे के घर के लिए तो ऐसा नहीं करते हो. माइन एंड दाइन की बात आ गई है. ये मेरा है तो इसकी ओनरशिप भी मेरी है, और ओनरशिप मेरी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है. अरे ये ओनरशिप उनके हाथ में पकड़ा दो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है. योगक्षेम महाव्या, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है. हमारे लिए तो लाइफ इतनी इजी है कि हमें तो कुछ करने की अपनी तरफ से कुछ, हमें तो सिर्फ अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सेंसेस को उन्हें ऑफर कर देना है कि भाई आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको कैसे इस्तेमाल करना है. और हमने इतने इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस इसके थ्रू हुए हैं कि everywhere where people we have not even known or met earlier have responded and reacted in such a manner कि बाद में हम सोचते हैं स्वामी ये आपने ही किया. अगर आपने ये नहीं किया होता तो ये तो स्ट्रेंजर्स थे, ये कैसे हमको हमारा इतना ध्यान रखते या हमारा इतना ख्याल करते. एक बड़ी मजे की चीज सुनाऊं. वो मैंने पहले भी इसको सुनाई है एक आध जगह कि हमारे मन में बहुत था कि हम वृंदावन जाए. बाद में हम अपने बाल विकास गुरुज को भी लेके वृंदावन गए. एंड वी हैड अ सत्संग, जो कृष्ण गोपी तत्व और ये सब जो है, हमने वहां के भागवतकार जो है श्रीवत्स गोस्वामी जी, उनके मुंह से सुनी भी और सीखा भी, उनसे समझा भी. भगवान हमको ले गए ऋषिकेश, हरिद्वार, गुरुज को, हम लोग को, सबको. और सब लोगों ने इतना उसको अप्रिशिएट किया और इतना उससे सीखा. हरिद्वार भी हम गए, वृंदावन भी हम गए, कुरुक्षेत्र में हमने गीता स्थली पे बैठ करके भगवान के 26 गीता के श्लोक किए, सब करके. और ऐसा ऐसा हमको वहां पे रिस्पॉन्स मिला. सब जगह जो लोग हमें नहीं जानते थे उन्होंने कितना कोऑपरेट किया कि भगवान ने अपनी मर्जी से कराया, तभी तो हम हमारे लिए पॉसिबल हो सका. तो ये उनके पास हम गए वृंदावन. तो हमारी एक बहन है इंदु त्रिखा थी, उनकी बेटी सोनिया त्रिखा वॉज अनंतपुर स्टूडेंट. फिर वो अनंतपुर में लेक्चरर भी हो गई और काफी उसका बैकग्राउंड है. तो बहुत डिवोशन है. शी इज नाउ अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी इन कम्युनिकेशंस. अब वो ये है कि वो थी और मैं थी, और हमारे साथ एक मुरारी बापू जी की शिष्या थी शीला निगम, और एक लेडी और थी. हम लोग पहुंच गए जी वृंदावन. हमें उन्होंने खोल दिया. ऐसी जगह, बारिश के दिन थे, यही दिन थे, और हम को ऊपर का उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे दिया जिसकी खिड़कियां यमुना जी पे खुलती थी, और यमुना वॉज इन फुल स्पीड. खूब हर 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 पानी, क्या नजारा था खूबसूरत, और हवा. और वो कहें कि हमारे, आपको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा खाना पीना सब हम करेंगे. और उनका खाना पीना आश्रम का चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा, उसपे वो श्रीवत्स गोस्वामी जी की वाइफ बैठती थी
और वो भाई दाल और एक सब्जी और वो बना करके वहीं पटरे पे बैठा के हमको नीचे और थाली में हमें खाना खिलाती थी पत्तल में, और सब्जी। अब हम गए जी, ये हुआ कि हमें तो बांके बिहारी जी के मंदिर जाना है। निकले तो जैसे ही हम निकले तो शीला और वो उनके साथ जो दूसरी लेडी थी, उन्होंने कहा हम राधा रमन जी की तरफ से होते हुए बांके बिहारी पहुंचेंगे। हमने कहा हम इतना तो नहीं चल सकते, हम सीधे बांके बिहारी जी जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे भगवान दास जी। तो हम जैसे बाहर निकले तो वैसे ही गेट पर जैसे कोई ऑटो वेट कर रही हो, और हम लोग उस पे बैठ गए, और वो हमें लेकर के बिहारी जी की गली पर पहुंच गया। अब यहाँ पर जो लोग हमारी सिस्टर्स रह गई थी, उन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से प्रसाद चढ़ा देना, हमारी तरफ से प्रसाद चढ़ा देना। तो हम जब प्रसाद लेने के लिए रुके तो हमने देखा कि एक लड़की थी, और वो आई और उसने 10 रुपए की रबड़ी मांगी, और उसने ताजी ताजी रबड़ी उसको दोने में करके और रबड़ी। एकदम मेरे मन में आया, हाय हाय, अभी तो हम मंदिर जा रहे हैं, तो झूठे मुंह तो नहीं जा सकते, लेकिन जब लौट के आएंगे तो रबड़ी जरूर खाएंगे यार की। मन में थॉट, एंड आई डिडंट नो दैट इंदू दीदी हैड द सेम थॉट इन हर माइंड। और हम प्रसाद बंधवा रहे हैं उनसे डब्बे, कि ये डब्बे बांध दो, और सोच रहे हैं रबड़ी के बारे में कि रबड़ी खाए। अब हम पहुंच गए जी प्यार। संडे का दिन था, श्रावण का महीना था। इतनी भीड़ थी बांके बिहारी के मंदिर में कि हम उधर गर्भगृह की तरफ जा ही नहीं पाए। और इस तरफ क्या जो ऊपर का चबूतरा था, उस पे खड़े हुए हम, वहीं से पर्दा खुलता था, हमें दर्शन होते थे, फिर पर्दा बंद हो जाता था। हमने कहा भैया हम तो जा नहीं सकते इतनी भीड़ में, तो ये प्रसाद कैसे चलेगा चढ़ेगा। यू विल नॉट बिलीव इट कि ऐसे जैसे कोई धोती पुल करता है, ऐसे दो बच्चे, एक बच्चा होगा करीब 12-13 बरस का, और एक बच्चा होगा करीब 8-9 बरस। और उसने कहा, और दोनों पीले स्लीवलेस अंगरखा और पीली सिल्क की धोती, जो काफ लेंथ धोती पहने हुए, और माथे पे वो तिलक लगा हुआ, और बड़े प्यारे बच्चे। और उन्होंने ऐसे कहा, मैया प्रसाद चढ़ाना है, हाँ लाओ हमको दो, हम चढ़ा के आते हैं। अब हम तो मतलब हिप्नोटाइज की तरीके से हमने उन नन्हे नन्हे हाथों में हमने अपने 4 डब्बे पकड़ाए, और वो लेके चल दिए। भगवान दास उनके पीछे पीछे भागे कि भैया बच्चे हैं, कहीं से गिर गिर आना चाहे कुछ ना हो जाए। गए। भाई वो तो सीधे ऐसे दर दर जैसे कि उनकी अपनी मिल्कियत थी। वो बिल्कुल गर्भगृह पहुंच करके पंडित ने वो लेकर के प्रसाद चढ़ा लिया, और चढ़ा करके वो लेकर के वापस भी आ गए। इसी बीच में एक मालिन बहन आई, और उन्होंने हमें माला पकड़ाई कि जी ये 108 कमल की माला है, और ये, और हमारे मन में ये था कि हाय कमल की माला होती तो कितना अच्छा होता। और वो आगे ही कहने की कमल की माला है आप। कमल की माला भी भाई भगवान दास के हाथ में पकड़ाई, वो भी उनके हाथ में। अब हम वहां खड़े हैं, अब वो बच्चे आए और कहते हैं भैया यहाँ पे कोई तुम्हारा जान पहचान का है। हमने कहा नहीं भैया, जो ये सामने है ना गर्भगृह के अंदर, हम सिर्फ इसको जानते हैं और किसी को नहीं जानते यार। तो कहते बस यहीं खड़े रहना, यहाँ से हिलना नहीं, अंदर से तुम्हारा भोग आ रहा है, अंदर से तुम्हारा भोग आ रहा है। और भाई 5 मिनट के अंदर बिल्कुल ऐसे जैसे कि पेड़ की डाली में से पत्ते तोड़ते हैं, सॉफ्ट इस तरीके के हरे पत्ते, और वो उनका दोना बना हुआ, और एक दोना तो लबालब रबड़ी से भरा हुआ, और एक दोने पर बिल्कुल जैसे कढ़ाई से निकला हुआ सिका हुआ समोसा, और ढका हुआ। और वो सब हम 3 जनों के लिए और भगवान दास के लिए। और अब हम कहें कि भैया क्या नहीं यही खा लो भैया, हमने कहा अब यहाँ कैसे खाए।
यहाँ तो पुजारी कोई देख लेंगे पंडित तो हमको निकाल देंगे यहाँ से। मंदिर है, हम यहाँ पे कहने नहीं नहीं चलो यहाँ सामने सीढ़ियां हैं, यहाँ बैठ जाओ। हम बैठ गए वहां पर। अब वो हम बैठ करके खा रहे हैं, वो बच्चे हमारे पास चिपके हुए बैठे हैं और उन्होंने कोई खाने की वो नहीं करी। बस ये कहते रहे भैया खा लो खा लो। अब हम खा रहे हैं वहां पर। पंडित जी ऐसा लगा जैसे कि वो तो पट बंद करना ही भूल गए, पर्दे खींचने ही भूल गए। पर्दे खींचे रहे। हम आधे घंटे बिहारी जी के दर्शन करते रहे। और हमने वो समोसा भी खाया, रबड़ी भी खाई। और वो मिनरल वाटर की बोतल रहती है साथ में, भगवान दास के पास थी, उसी से हमने अपना वो किया। अब वो बच्चे कहते हैं भैया अब जो वो रास्ता है निकासी का ना, उससे मत जाना, वहां बहुत भीड़ है, फंस जाओगी। चलो हम तुमको निकालते हैं बाहर। अब वो हमें किस रास्ते से गए और उन्होंने लाके हमको बाहर गली में पहुंचा दिया। और उसके बाद बच्चे ये जा वो जा कहाँ गए मालूम। ना हमसे कुछ लिया ना कुछ दिया, बस इतना काम करके वो जब तक हम बैठे रहे हमारे साथ चिपके बैठे रहे और चले गए। अब जी अगले दिन सुबह हम दिल्ली वापस आ रहे थे। सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे। मैं उतरी कि श्रीवत्स गोस्वामी जी की वाइफ को थैंक यू कर दूं कि आप लोगों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। और हमने बहुत। अब उन्होंने छूटते ही हमसे पूछा कि बिहारी जी के दर्शन कर आए। अच्छा वो आश्रम जो था वो राधा रमन मंदिर की सेवा करता था। और राधा रमन मंदिर तो हमारा जाने ही नहीं हुआ। हम तो बिहारी जी के। तो हमने उनसे कहा कि नहीं नहीं हम बिहारी जी के दर्शन हो गए और अब हमको दिल्ली जाना है वापस, तो हम जा रहे हैं वापस, फिर आएंगे। यानी कैसा रहा आपका वृंदावन का। तो हमने उनको ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे बिहारी जी के मंदिर में हुआ। और हमने किसी और को तो देखा नहीं समोसा और रबड़ी खाते हुए। लेकिन वो दोनों बच्चों ने हमको रबड़ी और समोसा ये कह के तुम्हारे लिए भोग अंदर से आया है करके उन्होंने हमें खिला दिया। उनके आंख में आंसू आ गए। कहने 21 साल से हम वृंदावन में रह रहे हैं, लेकिन हमें आज तक दाऊ के और कन्हैया के दर्शन, काले के दर्शन नहीं हुए। और आप लोग काले और दाऊ के दर्शन करके जा रहे हैं। कहा कि काला और दाऊ के दर्शन कैसे हमने किए मालूम नहीं। अब हम लौट करके जब आए तो वृंदावन में व्हाइट फील्ड से मीरा, हमारी एक और साई सिस्टर हैं, तो उनका फोन आया। बाबा पूछ रहे हैं कि आपके बिहारी जी कैसे लगे आपको। और बाबा तो बिहारी जी कभी कहते नहीं। वहां तो गोपाला और चिचोरा और नंदलाला ये सब होता है, बिहारी वर्ड तो मैंने कभी सुना नहीं वहां पर किसी में। लेकिन उन्होंने ये कहा। तो हमने कहा कि भाई ये ये सब स्वामी की लीला है। स्वामी का वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग है कि हम उनकी तरफ, जो वो कहते हैं कि एक कदम मेरी तरफ बढ़ो तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। तो जब वो इंटेंशन देखते हैं और इंटेंशन की इनोसेंस और प्योरिटी को देखते हैं तो वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो सुनाने के, जो कि स्वामी ने और जगहों पर हमको दिए। द्वारका में, नाथ द्वारा में, और सोमनाथ में, गंगा सागर में, बहुत जगह उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए। हर जगह स्वामी फिजिकली ना भी हो, लेकिन वो किसी न किसी फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होते थे और उसका एहसास हमें दिलवा देते। तो हमने स्वामी को बहुत 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 प्यार पाया, बहुत बहुत उनका हमको हमारे ऊपर बड़ी दया, बड़ी प्रेम रहा है, बड़ी करुणा रही है। और सभी के ऊपर रहती है। उस सभी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम उनका स्वभाव है। कितना आप उस प्रेम के लिए अपने को खोलते हो उतना ही प्रेम पा जाते हो। जितना बड़ा कटोरी रखोगे तो कटोरी में मिलेगा, कटोरा रखोगे तो कटोरा मिलेगा। जितना बड़ा पतीला रखोगे पतीला भर के मिलेगा। उनका काम तो देता है।
भरना है, जितना आप अपने को खोलोगे उतना ही पाओगे। ये हमारे स्वामी है। साई राम बेटा।